مسلمان اپنے عدل و انصاف سے اور مسلمان اپنے رزق حلال سے پہچانا جاتا تھا. اور آج چاند ٹیکری کے لوگوں اپنے گاؤں میں تم غور کر کے دیکھ لو, اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اگر وہ چاہیں تو اپنے بستر کے نیچے پیسہ رکھ کر بستر پہ سوئیں, پیسے کے بستر پہ سوئیں. لیکن آپ غور کر کے دیکھ لو, ایک غریب شخص جو لاری لگا کے عزت کے ساتھ حلال روزی کما کے کھاتا ہے, وہ جب بستر پہ لیٹتا ہے چٹائی پہ, وہ اپنے چھوٹی ہوئی جو ہے چارپائی پہ لیٹتا ہے, اسے فوراً نیند آ جاتی ہے. لیکن وہ جس کے پاس پیسے بھرے ہوئے ہیں, جس نے غریبوں کا حق مارا ہے, غریبوں کو ستایا ہے, دوسرے کا مال ہڑپ رکھا ہے, وہ رات کے 2 بجے تک, 2 بجے رات کو, 3 بجے رات کو جب تک نیند کی دوا نہیں کھاتا اس کو نیند نہیں آتی ہے. یہ بات نہیں. مسلمانوں, حلال رزق کماؤ, حلال رزق کھاؤ. حلال رزق کماؤ گے, حلال رزق کھاؤ گے, اللہ آپ کے تھوڑے مال میں اتنی برکت دے گا کہ کبھی آپ کو کسی دوسرے کا محتاج بننا نہیں پڑے گا. حلال رزق اگر کھاؤ گے, کماؤ گے, کبھی اللہ تمہیں کسی اپنے علاوہ تمہیں کسی دوسرے کا محتاج نہیں بنائے گا. حاضرین محترم, آپ کو میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داستان سناتا ہوں. یہ ہمارے فراز بھائی بیٹھے ہیں, ان کی حاضری ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ ہوئی ہے. میں جہاں کا رہنے والا ہوں, میرے گاؤں سے تقریباً 70 کلومیٹر پہ یا 60 کلومیٹر پہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عالم دین ہیں, وہ صوفی ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھایا ہے. سبحان اللہ. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا شاگرد خود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ کا پڑھایا ہوا شاگرد, آپ کا پڑھایا ہوا بچہ آج وہ دہلی کا بادشاہ ہو گیا, ہند کا بادشاہ ہو گیا ہے. اتنی غریبی ہے, اتنی فقر و فاقہ ہے, اتنی غربت ہے. آپ جائیں, آپ کا پڑھایا ہوا بچہ بادشاہ ہو گیا, آپ ان کی بارگاہ میں جائیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی بارگاہ سے کچھ نظر و نیاز ملے تو کچھ دنوں کا, مہینے کا, 2 مہینے کا گھر کا راشن پانی کا انتظام ہو جائے. بی بی کے کہنے پر ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دہلی کا سفر کرتے ہیں اور دہلی جاتے ہیں. اور جب وہاں جاتے ہیں تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد گرامی ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شاہی خزانے سے کھانا کھلاتے ہیں, اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے, آپ کو الگ کھانا کھلاتے ہیں. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, تیسرے دن ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ میرا شاگرد جو بادشاہ ہو گیا ہے یہ بڑا ہی عمدہ اور بڑا لذیذ کھانا کھاتا ہے, یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھاتا ہے. تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ آج شام کا کھانا میں تمہارے ساتھ کھانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور, آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائے, آج ہم دونوں لوگ مل کے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. شام ہوئی, ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے گھر اپنے شاگرد, اپنے اسٹوڈنٹ کے گھر گئے. اور وہ اسٹوڈنٹ کون تھا؟ وہ ہند کا راجا تھا, بادشاہ تھا اس وقت, دہلی کا بادشاہ تھا وہ. جب وہ گئے, چٹائی بچھائی جاتی ہے, بوری بچھا دی جاتی ہے, اور روٹی آتی ہے, اور چٹنی آتی ہے, ساگ آتا ہے. جب اس کو دیکھتے ہیں ملا جیون تو فرماتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے, تم یہ کھانا کھاتے ہو؟ کہا حضور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ مجھے شرف بخشا ہے, مجھے چنا ہے. حضور بیت المال میں جو مال ہے وہ سب اللہ کی مخلوق کا ہے, وہ سب رعایا کا ہے, میرا تو کچھ نہیں ہے, میں تو اللہ کی مخلوق کا, میں تو اپنی رعایا کا خادم ہوں. حضور میں گھر میں ٹوپی کی بنائی ہوتی ہے, ٹوپی بنائی جاتی ہے, اس سے جو پیسہ کماتا ہوں حضور اسی کمائی سے میں اپنے گھر کا کام کاج چلاتا ہوں. میرے گھر کی روزی روٹی میرا, میں اس چوپی کے بننے پر جو پیسے ملتے ہیں اس پیسے سے چلتا ہے. میں شاہی خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں کھاتا ہوں. حاضر مکرم, یہ دیکھیے کہ ہماری تاریخ یہ تھی, ہماری یہ داستان تھی.
3 दिन के बाद जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्द से मुलाकात करने के बाद जब अपने घर के लिए रवाना हुए तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उस्ताद को 2 पैसे दिए। उस वक्त जो भी चलता रहा हो, कौड़ी चलती रही हो या पैसे चलते रहे हो, जो भी रहा हो, आपने 2 कौड़ी या 2 पैसे दिए और आप उसको लेकर आप रास्ते में आ रहे थे। अब बीवी से तो हर बंदा डरता है। बीवी जब अगर घर में फार्म में आती है तो अच्छों की ढीली हो जाती है। अब सोचते हुए आ रहे थे कि बीवी ने भेजा था कि जाओ कुछ नजरो नियाज मिलेगा तो 1 महीने का 2 महीने का राशन पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। ये 2 कौड़ी 2 पैसे लेकर मैं वापस आ रहा हूँ, इससे क्या मिलने वाला है। सोच रहे थे कि बीवी को क्या जवाब दूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द, मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जो बादशाह हो गया, उसकी बारगाह से मुझे 2 पैसे मिले हैं। लेकिन रास्ते में आ ही रहे थे कि दिल में ख्याल आया तो चले गए बाजार, मछली मंडी चले गए और मछली मंडी में जाने के बाद में 2 पैसे से 2 मछलियाँ खरीदी। देखें आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल रिस्क में किस कदर बरकतें अता फरमाता है। 2 मछली खरीदी और घर आए, सलाम किया बीवी को और कुछ नहीं बताया। बीवी से कहा कि बहुत तेज़ भूख लगी है, ये 2 मछली है, इसको सबसे पहले कोई बात बाद में करेंगे, हम पहले इसको मछली को बनाओ, इसको पकाओ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं सफ़र का थका मांदा आया हूँ। हाज़िर गिरामी कद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बीवी जब उस मछलियों को बनाने के लिए जब उसका पेट चाक करती हैं, उसके पेट में 2 हीरे निकलते हैं जिसकी कीमत उस जमाने में लाखों से ऊपर बिकती हुई नजर आई है। तो देखें आपके अल्लाह हलाल रिस्क में किस कदर बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह हलाल रिस्क में किस कदर बरकतें अता फरमाता है। मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह अपने सिवा तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। अपने आने वाली नस्लों के ईमान को बचाओ, अपने आने वाली नस्ल के ईमान को बचाओ। मुसलमानों, ये बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला कौन हैं? ये वो दिल्ली का बादशाह, ये वो दिल्ली के बादशाह थे कि जिन्होंने बनारस की सरजमीन पे अपना एक कोतवाल मुकर्रर किया था, जिस कोतवाल का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम कोतवाल, जिसको आपने दिल्ली जो है बनारस की सरजमीन में कोतवाली के लिए मुकर्रर किया था कि देखो अगर कोई हाजतमंद आए तो उसकी हाजत पूरी करो, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करो। वो इब्राहिम कोतवाल वो बड़ा ही अय्याश था, बड़ा ही बदतमीज़ और बड़ा ही बदकिरदार बंदा था। वो बंदा ऐसा था इब्राहिम कोतवाल कि अगर कोई लड़की खूबसूरत देखता तो उसके बाप से कहता कि अपनी लड़की को डोली में सजा के फला तारीख तक मेरे महल पे भेज दो। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको लोगों की परेशानियों को देखने के लिए, लोगों की हाजत रवाई के लिए वहाँ पर मुकर्रर किया था। लेकिन वो वहाँ पर बनारस की सरजमीन में, काशी की सरजमीन में वो जो है अय्याशियाँ करता हुआ नजर आता था। एक लड़की थी पंडित की, एक पंडित की लड़की निहायत खूबसूरत, खूबरू, जिसका नाम शकुंतला था। उस इब्राहिम कोतवाल की निगाह उस शकुंतला पंडित की लड़की पे पड़ती है। एक ही नज़र में उस पंडित की लड़की पर इसका दिल आ जाता है, आशिक हो जाता है और वो जाके पंडित से कहता है कि पंडित जी अपनी इस लड़की को फला तारीख को डोली में सजा के मेरे महल पहुँचा दो, डोली में सजा के मेरे महल पहुँचा दो। लेकिन पंडित की जो लड़की थी वो भी बड़ी चालाक थी। उसने कहा कि अब्बू जान आप जाके कोतवाल से कहें कि इतनी तारीख को मेरे पास इतने इंतज़ाम नहीं है, ज़राए नहीं है, मैं अपनी लड़की को आपके महल तक पहुंचा दूं। अगर थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा वक्फा और मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। जाके उस पंडित ने बात की तो इब्राहिम कोतवाल मान गया, कहा ठीक है मैं थोड़ा सा मैं तारीख में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इस तारीख को नहीं बल्कि आप फला तारीख को अपनी बेटी को डोली में सजा के मेरे महल में पहुँचा देना। हाज़िर मोहतरम, जब वापिस उसका बाप पंडित जब घर आता है, बेटी पूछती है मोहलत मिल गई?
कहा हाँ बेटी मिल गई। वो बेटी बनारस की सरजमीन से दिल्ली तकरीबन 650 बल्कि 700 किलोमीटर का सफ़र करके वो दिल्ली आती है। और जुमा के दिन बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद आप जब बाहर निकलते थे तो लोग अपनी फरियाद लेकर चिट्ठी में लिखकर लोग कतार में खड़े रहते थे, लाइनों में खड़े रहते थे। और बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह हर एक के हाथ, हर एक को मुसाफा करते थे, सलाम करते थे और हर एक से चिट्ठी लेकर उनकी फरियाद को सुनते थे और हुक्म जारी करते थे कि फला बंदे की यह परेशानी है, इसकी परेशानी को दूर की जाए, फला बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत को दूर किया जाए। वो लड़की भी गई, लेकिन मालूम है वो मर्दाना लिबास में गई, मर्दों का लिबास पहन के गई और अपने चेहरे पे नकाब डाल के गई और मर्दों के कतार में जाके खड़ी हो गई। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह जामे मस्जिद की से निकल रहे थे, लोगों से मुसाफा कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, चिट्ठी ले रहे थे, लेकिन जब उस लड़की के पास आए तो आपने उससे हाथ न मिलाया बल्कि अपने हाथ पे कपड़ा रख लिया और कपड़ा रखने के बाद में उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। तो उस लड़की ने कहा ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया है? सबसे तो आपने हाथ मिलाया है, लेकिन मेरे से जब हाथ मिलाने की बारी आई तो आपने अपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल लिया? बादशाह औरंगज़ेब ने कहा कि ए बेटी मैं जानता हूँ कि तू मर्द नहीं बल्कि एक औरत है और इस्लाम में एक कोई शख्स किसी गैर महरम को हाथ लगाए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। कहा बताओ क्या फरियाद है? चिट्ठी में उसने सारी बात लिख दी थी। इब्राहिम कोतवाल ने ये बात कही है। इब्राहिम कोतवाल की बातों सारी उसकी सारी करतूत को बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा कि बेटी ठीक है, जाओ फला तारीख को तुम्हारी डोरी सज के इब्राहिम कोतवाल के महल पहुंचेगी। क्या कहा बादशाह औरंगज़ेब ने? कहा बेटी जाओ, अब तुम्हारी डोली सज के इब्राहिम कोतवाल के महल पहुंचेगी। वो बेटी वहाँ से, वो शकुंतला लड़की पंडित की बेटी वहाँ से वापस फिर से बनारस आती है। जब बाप उसका पूछता है कि बेटी बादशाह ने क्या हुक्म जारी किया? कहा अब्बू जान बादशाह ने यह हुक्म जारी किया है कि फला ही तारीख को तेरी डोली सज के इब्राहिम के कोतवाल के महल पर जाएगी। वो पंडित कहता है कि एक ही आसरा था, एक ही उम्मीद थी कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, वहाँ से ये इस तरह का हुक्म सादिर हुआ है। लेकिन वो शकुंतला बेटी वो लड़की कहती है कि अब्बू जान घबराए नहीं, मुझे उम्मीद है कि बादशाह हमारे साथ ज़रूर अदल इंसाफ करेगा। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि मैं वहाँ पर गई, उस बादशाह औरंगज़ेब ने मुझे 12 या 13 मरतबा बेटी कह के पुकारा है। अरे कोई बाप अपनी बेटी को नीलाम नहीं होने देगा। अगर उसने मुझे बेटी कहा है तो अगर उसने मुझे बेटी कहा है तो मेरे साथ इंसाफ करता हुआ नजर आएगा। वो तारीख भी आ गई, इधर डोली भी सज गई, इधर ये इब्राहिम कोतवाल खुशी के मारे फकीरों को पैसे लुटा रहा था। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जो है चादर डाल के फकीरों के सफ में जाके बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद में आप जब इस इब्राहिम कोतवाल आपके पास आता है तो ये आप फरमाने लगते हैं कि इब्राहिम कोतवाल मैं झुककर पैसा लेने वाला नहीं हूँ, मेरे सामने तू बैठ जा, मुझे इज्जत के साथ पैसा दे। कहा तू कौन है? जब नकाब पलटा तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। जब उसने देखा इब्राहिम कोतवाल ने, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, बादशाह ने कहा कि ऐ इब्राहिम कोतवाल जालिम, तुझे मैंने यहाँ पर अदल इंसाफ के लिए मुकर्रर किया था, तू यहाँ याशिया कर रहा है। बादशाह ने 4 हाथी वालों को बुलाए, 4 हाथियाँ बुलाई, उसके दोनों पाँव, उसके दोनों हाथों में रस्सियाँ बांध दी गई, उसके दोनों पैर में रस्सियाँ बांध दी गई और चारों हाथियों के पैर में रस्सियाँ बांध के एक को मगरिब में दौड़ाया गया, एक को मशरिक में दौड़ाया गया, एक को शुमाल में दौड़ाया गया, एक हाथी को जुनूब में दौड़ा दिया गया। जब चारों हाथी चारों दिशाएं में दौड़ते हैं, इब्राहिम कोतवाल बीच से भागता हुआ नजर आता है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम और मुसलमान वो है जो अपने अदल और इंसाफ से पहचाना जाता था। इस्लाम मुसलमान वो है जो अपने अदल और इंसाफ से पहचाना जाता है। आज हम गौर करें मुसलमानों, आज मुसलमान किस बेस पर पहचाना जाता है? आज तो हमारा ये हाल है। लोग कहते हैं कि मुसलमान वो है जो सबसे बड़ा धोखेबाज हो। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि मुसलमान वो है जो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला हो। ज़रा हम अपनी तारीख़ को देखें मुसलमानों, तारीख़ को देखें।
ایسے ہی دنیا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں یاد کرتی ہے۔ بادشاہ وقت تھے مگر شاہی خزانے سے کبھی ایک پیسہ بھی آپ نے نہیں کھایا۔ اور پھر جو حلال روزی تھی اللہ نے ان کی حلال روزی میں کس قدر اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے حال پہ کرم فرمائے۔ کیا چٹھی تھی ذرا دیکھیں، کیا نام ہے اس میں؟ مہجبین بانو کی دعا۔ ایک ہماری اسلامی بہن مہجبین بانو نام کر کی ہیں جو احمد آباد کے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کافی سیریس ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ تمام حضرات بالخصوص ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے فرید بھائی باغی صاحب ہیں، اب ان کی بیوی جو ہے ایک ہفتہ پہلے تقریباً 5 دن پہلے یہ بیمار ہوئی، اس میں بھی ان کا کافی خرچ آیا تقریباً 15-20 ہزار روپیہ۔ کل ابھی انہوں نے آپریشن کروایا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کشمیر کے لوگ آتے ہیں اور دیگر گرد و نواز لوگ آتے ہیں، ہم ان کو جب وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے صدقہ و خیرات کا 1000 روپے 1000 روپے دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی اپنی مسجد کے باغی ہیں اور پھر آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کا بھی ان کے اوپر کافی لوڈ ہے، قریب 15 سے 16 ہزار روپے کا ڈاکٹر نے خرچ بتایا ہے۔ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات بھرپور دل کھول کے ان کی مدد فرمائیں، اللہ ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت پڑھی وہ حضرات سنت